हेलो एवरीवन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द टोकन्स और उन टोकन्स में जो हमने बात करी थी वो हमने केवल आपको डेफिनेशन बताई थी आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या है। और टोकन के जब हम सेकंड टोकन की बात करते हैं कीवर्ड की तो उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी, लिटरल्स के बारे में डिटेल में बात की थी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफायर को प्रोग्रामेटिकली लिखते हैं और किस तरीके से हम वेरियस स्टेटमेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, है ना? तो स्टेटमेंट, कमेंट एंड द आइडेंटिफायर, ये तीनों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स टू राइट द आइडेंटिफायर, है ना? तो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द आइडेंटिफायर। One, that only alphabets, rates and digits are allowed. Next, there is only one there is only one special symbol in Python which is allowed to have the part of identifier, that is underscore, and apart from this there is no any symbol which you can use in the identifier. Yes, you all very well know the keyword cannot be used as identifier. And one important thing, even there is no restriction, but it is always recommended to write a very well defined identifier when you assign it to any entity that should be understandable, that should be properly readable. So there is no length limitation and other thing with the identifier. Let me take some examples of the identifier and then we will identify is there any error or not. So as per the discussion, suppose if I am writing x is equal to 5, when I run, x is equal to 5. So when I run this code, you can see I am not having any kind of error. It means that this identifier is acceptable. But when I write x01 is equal to 5, when I run this code again, you are getting no error because as per the rules that we have seen that only alphabets and digits are allowed. Valid point. But one thing, when you write 1x is equal to 5, so you will be getting an error. It means that it's an invalid syntax. So one more very important point about the identifiers. Identifiers always start with alphabet or special symbol. Let me check it. यदि मैं इसके प्लेस पर x1 लिखता हूँ एंड असाइन करता हूँ 5, सो यू विल सी देयर इज नो नॉट एनी एरर। मैंने एक चीज और बोली है आपसे कि आइडेंटिफायर जो है आपका वो अल्फाबेट से या डिजिट कंटेन कर सकता है, बट इट ऑलवेज स्टार्ट विद द अल्फाबेट और सिंबल। तो सिंबल का मतलब क्या है? मैंने आपसे एक बात और बोली है कि देयर इज ओनली वन सिंबल दैट इज अलाउड इन द आइडेंटिफायर, दैट इज अंडरस्कोर। तो मैं देखिए, लेट आई राइट अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 5। When I run this code, you are getting not any error. Again, if I write underscore x underscore is equal to 5, you're not getting any kind of error. So when I say underscore x underscore 1 underscore y is equal to 2, when I run this code, so again you are having no not any error. What does it mean? Your identifier can be the combination of the alphabet, digit, and the special symbol, that is underscore. Although in Python there is a different meaning for the underscore. It means you are giving one underscore, two underscore, left side underscore of the variable and the right side underscore of the variable, that we will discuss in the later videos. But right now what you need to understand कि identifiers को लिखने के क्या set of the rules हैं और क्या protocols हैं Python में. So this is all about the identifier. अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट टोकन को जान चुके हैं तो इन टोकन के अरेंजमेंट से ही हमारे पास जो बनेगा वो स्टेटमेंट बनेगा, है ना? सो
इन स्टेटमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये कमेंट होगा हमारा या फिर ये हमारा एक्चुअल कोड होगा जो एग्जीक्यूट होने वाला है ना। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द कमेंट्स। अब कमेंट्स के बारे में बात करना है, मतलब कि किसी भी प्रोग्रामिंग में यदि मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इट मीन्स दैट पाइथन वर्चुअल मशीन ने x इज इक्वल टू 5 को एग्जीक्यूट किया हुआ है। बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि मेरा सेल एग्जीक्यूट हो और यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन की साइड से कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, देखिए आप, इफ आई राइट प्रिंट x, व्हेन आई रन दिस कोड, यू आर हैविंग द आउटपुट एज अ 5, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस कोड को कमेंट आउट करूँ तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये वो स्टेटमेंट है पाइथन कोड का जो कि एग्जीक्यूट पीबीएम के थ्रू आपके सामने एग्जीक्यूशन मोड में नहीं आ पा रहा, वो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट है आपके पास, है ना। तो यू कैन नॉट सी द आउटपुट। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई डू प्रिंट एक्स, यहाँ पर हमें एक्स को भी कमेंट आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी। When I run this code, so you can see the x is equal to 5. Now, there are two types of comment in Python. One is single line, but I will say I have used the word two types of comment, but this is the myth. There is a only single line comment in the Python. बट एट द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस समटाइम्स यू फाइंड कि भाई मल्टी लाइन कमेंट भी हम कर सकते हैं। सो लेट आई चेक एंड आई डू द कोड इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर इज ओनली द सिंगल लाइन कमेंट, है ना। तो मैं यदि आपके सामने लिखता हूं कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, व्हेन आई राइट दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यू आर हैविंग नॉट एनी एग्जीक्यूशन। बट एट द सेम टाइम यदि मैं किसी चीज को मल्टी लाइन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास एक प्रोविजन है कि मैं ट्रिपल कोट्स के ब्रैकेट के अंदर उस डेटा को लिख दूं। सो सपोज आई राइट हियर इज ए एंटर मल्टी लाइन डेटा। So when I run this code, can you see this? In a single line statement, when I have taken the hash here to make it the comment, single line comment, यहाँ पर मेरे पास आफ्टर द एग्जीक्यूशन पाइथन वर्चुअल मशीन ने कोई आउटपुट नहीं दिया था। बट एट द सेम टाइम यदि मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लाइन में लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ स्लैश एन मल्टी लाइन डेटा। व्हाट डज इट मीन? द पाइथन वर्चुअल मशीन हैज ट्रीटेड इट एज अ समथिंग। तो पाइथन में केवल सिंगल लाइन कमेंट टाइप का एक ऑप्शन होता है, आपके पास मल्टी लाइन कमेंट का ऑप्शन नहीं होता। बट समटाइम्स यू फाइंड दिस इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, वो प्लेस कहाँ पर है जहाँ पर हमें कंफ्यूजन होने की संभावना होती है। सो लेट आई क्रिएट वन क्लास। अबाउट दिस वी विल डिस्कस इन द डिटेल। मैं एक क्लास ए बनाता हूँ एंड आई यूज द ट्रिपल कोट हियर, and in this triple code I am writing something here. This is a class A and I have to do the pass to get not any kind of error. When I run this code, you are not having any kind of error here. But when I create a object of this class, you can see, and when I hit a shift tab over the Jupyter notebook, so you can see a pop-up here which is showing that this is a class A. What does it mean? हमने इस क्लास के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट डॉक स्ट्रिंग लिखना थी वो इन ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखी। तो जब हम किसी क्लास के अंदर हम किसी डॉक स्ट्रिंग को बनाना चाहते हैं, देन वी विल बी यूजिंग द ट्रिपल कोट कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, शिफ्ट टैब क्यों बोल रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि जुपिटर में आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। बाय शिफ्ट टैब यू विल बी यूजिंग टू दिस इज ए क्लास ए, सो यू कैन एक्सप्लोर योर क्लास बाय यूजिंग शिफ्ट टैब हियर। आप हेल्प का यूज करके भी देखेंगे। इफ यू विल राइट हियर लाइक हेल्प इन ब्रैकेट ए, that is your class A. When you run this code, that we will discuss at the time of object oriented programming, पूरा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। but right now you need to understand कि this is a class A is a doc string given by this multi-line code. This is all about the
identifier, and the statements and the comment. So for this video, it's overall from my side. Thank you.